Good morning students and welcome you all that very nicely you are performing your homework, I think so. And in the doubt lecture very few students are coming, but students you have to come in the doubt lecture also, because whatever the doubt you are having, that each and every teacher is present in doubt solving lectures, and if you ask the doubt then your doubt is directly solved there. Okay, so after this lecture you have to join the doubt session. Okay, now you know that we have started our 5th chapter of the supplementary, footprints without feet, and we have seen that one scientist named Griffin, he invented some, we can say that unique invention he has invented or discovered. What the invention was? The invention was that once we have taken some medicines, our body becomes transparent. Okay, so we come to know through this chapter that this invention, whatever the Griffin has made, is he misused this invention. He has not used this invention for good purpose of the nation. That is why he has to suffer. And we say that how he robbed the shopkeeper, how he had stolen some food items as well as some clothes from the restaurant also. So we have seen this, and now we will move to the next what is given here. Okay student, now we see that whenever Griffin has invented that medicine and he drank the medicine, he became transparent. And whenever the two boys like you were seated there, whenever they saw the Griffin's footprints only, they didn't know that who is there, okay, but they followed the footprints and they come to know that one person is there and he is doing that is, means no spirit was there, because many people afraid of it, that maybe some we can say that spirit is might also be there. Okay, so guys, here Griffin ran from the London and he went to the Epping village. There he had taken 2 rooms on rent, and the lady, that is what's her name, Mrs. Hall. Mrs. Hall was trying to be friendly with him, but he was not responding properly to her because he didn't want to be friend to that Mrs. Hall. And he told to her that I am a scientist. I came here because I want the what is the word? What it means? I want alone. I have to be means isolated from the others. Why? Because I have to invent or I have to make some discoveries, and that is why please don't disturb me. Hearing this, she has some, we can say, that doubt on him, but she ignored the doubts. Why? Because she thought that he is a scientist and one scientist came in their house and he was doing some discoveries. So you know that scientist is a profession, we always honoring it. Okay, and that is why the lady ignored all the things. Then we move towards what happened next. Okay, now see. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Now see, one night, one incident was happened there. Here, that you know that whenever the lady, that the owner of that house, demanded some money from Griffin, so Griffin had made the excuse in front of her. What the excuse he had made? That he told that I don't have money right now, but I will give you soon because my check is on the way. That lady was awaited for this, but Griffin didn't have any money, so he was in tension and he decided to rob someone, and that is why he robbed clergyman. Clergyman means father of the church. Okay, any spiritual guru that we can calling it. So he went in the clergyman's home. At that time they both were sleeping there, and some noise were coming from their house. That is why they awakened and went to see that who was there. They also heard the chink sound of money. That you know the sound of money, ting ting, that is chinking sound of money.
Also they heard and they thought that might be someone came in their house for robbing purpose, and that is why that clergyman has taken what he has taken in his hand, poker. Poker means like we are having that forks, that type of poker in his hand, and he just stood behind the door and opened and said surrender. कुछ पता चल रहा है मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ? देखो, उसने, जैसे तुमको पता है, वो लेडी जो थी मिसेस हॉल, वो उससे पैसे की डिमांड कर रही थी, क्योंकि जितना उसने रेंट का पैसा भर चुका था वो उसकी व्हाट वी कैन से उसकी जो वैलिडिटी है वो कंप्लीट हो गई थी। तो अभी उसने बहाना बनाया कि मेरा चेक आने वाला है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। कौन सा चेक? कुछ भी नहीं था, हमको पता है। इसलिए उसने सोचा कि अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उसने जो क्लर्जीमैन वहाँ पे रहता था, यानी क्लर्जीमैन यानी धर्मगुरु जिसको हम लोग बोलते हैं, जो चर्च के अंदर प्रीचिंग्स देते हैं, तो उनके घर पे रॉबिंग करे। तो वो लोग सो रहे थे, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर स्लीपिंग, और ये उनके घर में जाता है, ड्रॉवर ओपन करता है, तो ड्रॉवर की फिर मनी की पैसे की आवाज़ आती है। पता है जैसे कॉइन नीचे करती है तो कैसी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं चिंक ऑफ मनी, आवाज़। सो उसकी आवाज़ से वो लोग जाग जाते हैं। वो पोकर हाथ में लेता है और फिर उसको वो बोलता है कि हु इज़ देयर, सरेंडर, जो भी है बाहर आओ, ऐसे वो बोलता है। एक्चुअली उसे पता नहीं अंदर कौन है, बट वो आवाज़ सुन के इस तरह से बोलता है। फिर आगे क्या होता है देखो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अभी क्या हुआ देखो। उन्होंने they were surprised seeing inside that no one is there. The room was empty totally. जब वो अंदर देखा तो वो सरप्राइज हो गए, उनको पता चला कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर उसकी वाइफ जो है, उन्होंने डेस्क खोल के देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, चिमनी के ऊपर देखा, कोई नहीं था। उनको ऐसा कि कोई नहीं है, बट उनको ये पता चला कि उनके ड्रॉवर में जो हाउसकीपिंग के लिए मनी था, डेली जो भी कोर्स होता है, वो उसके लिए जो मनी रखा था वो मिसिंग है। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन वो क्लर्जीमैन सोचता ही रहा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इट्स वी कैन से दैट वेरी मिस्टीरियस that no one was inside the house and who has robbed the money. That so many questions were the clergyman was thinking, okay, going on in his mind. फिर पूरे दिन वो सोचता था कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट हो गया, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर और इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर दैट समवन हैज डन विद देम। फिर द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. अभी देखो, जो फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड यानी जो भी वो लेडी और उसका हस्बैंड, दोनों जल्दी उठते थे मॉर्निंग में, और उनको रेगुलर उनकी हैबिट थी कि जब भी वो ये ग्रिफिन का डोर देखते थे वो हमेशा बंद होता था, लॉक होता था, और मॉर्निंग में उसको कोई विश करे या उसके रूम में कोई एंटर हो तो ग्रिफिन उसके ऊपर चिढ़ता था, उसको बहुत गुस्सा आता था, इसलिए कोई उसके रूम में जाने की हिम्मत नहीं करती थी। बट आज उनको पता चला कि उसका रूम तो ओपन है, द डोर वॉज ओपन, तो ग्रिफिन का है। उनके मन में एक डाउट आया। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू बी गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने आसपास देखा, दरवाजे के अंदर पीपड़े मीन्स टू लुक इनसाइड, झांक कर देखा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। दे पीपड़े इनसाइड द डोर, आसपास देखा, रूम में देखा, नो वन वॉज देयर। फिर उनको ऐसा लगा कि फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया, स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट कि कहाँ गया ये। फिर क्या हुआ देखो, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientists must have been for some time, and strange still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about on the room. फिर देखो, उसके कपड़े जो थे वो ठंडे हो गए थे बहुत। उनको ऐसा लगा कि शायद ये कहीं बाहर से जाके आया होगा, और उसके जो भी बैंडेजेस उसने नाटक किया था बांधने की, वो भी साइड में पड़ी हुई थी। इनको ऐसा लगा कि ये कहाँ गया, वो सब ढूंढ रहे थे। देन व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bed post leaped up and dashed itself into her face. फिर थोड़े ही समय में, when these people were investigating the house of Griffin, okay,
तब उसको अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी और उसको ऐसा लगा कि उसके और मीन्स थ्रू ऑन हर फेस समवन हैज थ्रोन द हैट। उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि कोई मेरे मुंह के ऊपर हैट जोर से फेंक रहा है। वो किसने किया था? ग्रिफिन में। बट नो वन वॉज देयर, वहाँ पे कोई था नहीं, बिकॉज ग्रिफिन वॉज ट्रांसपेरेंट नाउ, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी, इन लोगों को दिख नहीं रहा था। बट ग्रिफिन और मिसेस हॉल को ऐसा लगा कि उसके फेस के ऊपर कोई कैप, उसकी जो हैट है नॉट कैप, वो कोई जोर से फेंक रहा है। फिर देखो, देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव and springing into the air it charged straight at her legs foremost। फिर क्या हुआ देखो, जैसे ही वो लोगों ने टर्न किया तो उनको ऐसे लगा कि जो बेडरूम के अंदर चेयर थी उसमें जान आ गई, और वो चेयर अचानक से इतनी जोर से वहां से आई और वो किसके पैरों में जाके गिरी? मिसेस हॉल के। अभी वो लोग डर गए क्योंकि चेयर अपने आप कहाँ से आ रही है, ये सब हवा में क्या चल रहा है, कोई भी डर जाएगा अगर कोई दिख नहीं रहा है तो। फिर उन लोगों को क्या किया देखो, दे वर अफ्रेड लॉट, वो बहुत डर गए। फिर नाउ एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। फिर वो लोग डर गए, घबरा गए बहुत। तो जब वो लोग घबरा गए उतने में दूसरी चेयर उनकी ओर आई और इतनी जोर से आई वो चेयर कि उन दोनों को दरवाजे के यानी वो रूम के बाहर फटाक से जाना पड़ा, जिसकी वजह से दे वे आउटसाइड द रूम एंड ऑटोमेटिकली द डोर वाज क्लोज एंड लॉक। फिर अचानक से वो दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गए। अभी ये दोनों डर गए बिकॉज दे वर इन अ टेरर, दे थॉट दैट सम स्पिरिट वाज लिविंग इनसाइड। ओके, द हाउस मे बी हॉन्टेड बाय समवन। उनको ऐसा मन में एक टेरर फैल गया, एक डर फैल गया, जिसकी वजह से वो बाहर, वो चेयर की वजह से उन दोनों को बाहर ही जाना पड़ा। जैसे ही वो दोनों बाहर गए, रूम लॉक, दरवाजा बंद। अभी क्या हुआ देखो, नाउ My Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. अभी उसको Mrs. Hall was in a, we can say that, terror. She stepped up, means she stepped down from the stairs. वो hysterics का मीनिंग होता है डर के मारे। ओके, इन वी कैन से दैट डिलेमा और इन अ टेरर, वो नीचे गिर जाती है, थोड़ी चेयर पे नीचे स्लिप हो जाती है। फिर उसके मन में ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई आत्मा आई है जो चेयर के अंदर घुसी हुई है और हम लोगों को परेशान कर रही है। अभी वो क्या सोचती है देखो, माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। उसको ऐसा लगा कि उसकी मम्मी पहले, जो अभी लाइव नहीं है, वो मर चुके हैं, शायद वो मम्मी जो है उसकी स्पिरिट जो है आत्मा वो चेयर में आ गई है और मुझे परेशान कर रही है, ऐसा उसको लगने लगा। बिकॉज वेन एवर मिसेज हॉल्स मदर वॉज अलाइव एट दैट टाइम शी यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर एंड मिसेज हॉल केम दिस थॉट इन अ फर्स्ट ग्लैंस ओनली। पहले ही लुक में उनको पता चल गया कि ये शायद मेरी मॉम हो सकती है, जो जब वो जिंदा थी तो ये चेयर पर वो बैठा करती थी। देन व्हाट हैपेंड, सी the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when the news of the burglary at the clergyman's home became known and the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, suspicion grew even the stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। अभी देखो, पूरे गांव में तुमको पता है बैड न्यूज स्प्रेड वेरी फास्ट। पूरे उनका जो विलेज था ईपिंग, उसमें न्यूज़ फैल गई कि मिसेस हॉल के ऊपर किसी ने विचक्राफ्ट किया हुआ है। किसी को ऐसा लगता था कि ये विचक्राफ्ट हो भी नहीं सकता क्योंकि उसी वक्त क्लर्जीमैन के घर में हाउस बर्गलर हुआ था। यानी इन लोगों को डाउट आया सिर्फ एक पर्सन पे, किसके ऊपर? ग्रिफिन के ऊपर, क्योंकि ग्रिफिन ने तुरंत मिसेस हॉल को मनी भी दिया था। अभी थोड़े दिन पहले उसने क्या बोला था कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, चेक इज ऑन द वे, और अचानक से उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? यानी डाउट गोज टू ऑन ग्रिफिन डायरेक्टली। किसके ऊपर डाउट जाता है? ग्रिफिन के ऊपर। उन लोगों को लगा कि ये विचक्राफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर विचक्राफ्ट होता तो वो पर्सन है वो सिर्फ मिसेस हॉल को परेशान करता। क्लर्जीमैन के घर में बर्गलरी की होती, रॉबरी की होती। यानी ये जो इंसिडेंट्स हो रही है, these incidents are correlated with each other as the villagers were thinking like that। वो लोग ऐसा सोचने लगे कि इसमें साइंटिस्ट का ही हाथ है। एज ए साइंटिस्ट ही कैन डू एनीथिंग, वो साइंटिस्ट है, वो कुछ भी कर सकता है।
तो सब लोगों का जो भी डाउट है, सस्पिशियस एक्टिविटीज, वो वैसे भी सस्पिशियस ही था, वो कुछ एक्टिविटीज ही ऐसी करता था, तो सबका डाउट उसके ऊपर गया। फिर क्या हुआ देखो, द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। फिर विलेज का जो इंस्पेक्टर था उसने यूनिफॉर्म नहीं, सीक्रेटली वो इन्वेस्टिगेशन उसने स्टार्ट किया। मिसेस हॉल ने वेट नहीं किया, वो डायरेक्टली उसके ग्रिफिन के रूम में गई और ग्रिफिन उसको वहां पे दिखा, क्योंकि अब तक तो बेडरूम ओपन था, एम्प्टी था। ओके, अचानक से ग्रिफिन कहाँ से गया, क्योंकि वो मिसेस हॉल का ही घर था और मिसेस हॉल अपने हाउस को अच्छी तरह से जानती थी, कहाँ से एंट्री है कहाँ से एग्जिट है। तो वो शॉक हो गई कि अभी ये अंदर कोई था नहीं, अचानक से अंदर कैसे आ गया। सो I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know it is you came out of an empty room and how you entered the locked room. अभी उसने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया कि मुझे पता है चेयर मेरी ओर फेंकने वाला तू ही था। दूसरा, ये बात भी मुझे पता है कि ये एम्प्टी रूम के अंदर तू कहाँ से अंदर आया ये मुझे पता नहीं, बट ये तू ही है। ऐसा मिसेस हॉल ने उसको डायरेक्ट बोला, बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी। ओके, और वो उसको पहले से क्यों जानती थी, क्योंकि देखो वो जो था मिसेस हॉल ने काफी बार उससे फ्रेंडली होने की कोशिश की, बट ही डिडंट, बट वो नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ फ्रेंडशिप बने। इसलिए मिसेस हॉल को सीधा डाउट किसके ऊपर गया, ग्रिफिन के ऊपर। तो ग्रिफिन को वो डायरेक्ट बोलने लगी कि तू एम्प्टी बेडरूम में एंट्री कहाँ से की तूने, और वो जो चेयर मेरी ओर फेंकना और जो भी चेयर के साथ करना वो तेरा ही काम है, ऐसे मिसेस हॉल ने उसको बोला। फिर अभी क्या होता है देखो, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। अभी ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड मीन शॉर्ट टेम्पर्ड। उसको शॉर्ट टेम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, गुस्सा आना तुरंत। एंड नाउ ही टेम्पर्ड, फिर उसको तो इतना गुस्सा आया, ही वॉज फ्यूरियस, बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर, मिसेस किसिंग के ऊपर, मिसेस हॉल के ऊपर। नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। उसने उसको धमकी दी कि तू मुझे शायद जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसे उसने डायरेक्टली किसको बोला, मिसेस हॉल को बोला। यानी यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि उन दोनों में झगड़े स्टार्ट हो गए। ओके, अभी उन दोनों में से यानी मिसेस हॉल को तो सीधा डाउट जाएगा ही, क्योंकि उनके घर में अब तक कोई भी नहीं था, अचानक से ये कहाँ से आया, तो वो तो ऑब्वियसली बोलेगी। बट उनको पता है ग्रिफिन का नेचर कैसा था, ही वॉज वेरी रूड, शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, ओके, एंड नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। सो उसने डायरेक्ट मिसेस हॉल को ऐसा बोला कि यू डोंट नो हु आई एम एंड व्हाट आई एम, आई विल शो यू। कि तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए उसने मिसेस हॉल की ओर उनको ऐसे धमकी दी। फिर क्या हुआ देखो, सडनली he threw off bandages, whiskers, spectacles, even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. फिर उसने क्या कह रहे, सबसे पहले उसने वो बैंडेजेस निकाले जो उसने लगाई हुई थी। बैंडेजेस निकालने के बाद विस्कर्स जो उसने लगाए हुए थे, यानी हम लोग यहाँ पे मॉस्टाइज बोल सकते हैं, स्पेक्टेकल्स, उसका जो नकली नोज था वो निकाल के फेंक दिया। नाउ अभी तो इसको ये सब करने में 1 मिनट से भी कम लगा। उसके आसपास जो भी लोग खड़े थे वो लोग सब देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है सब। और बाद में उनको ऐसा लगा कि ये जो मैन है इसका तो हेड ही नहीं है, उसका हेड गायब हो गया। क्योंकि तुमको पता है जैसे जैसे वो चीजें निकलता था वो क्या होता था, ट्रांसपेरेंट हो जाता था। ही वुड बी डिसेबल्ड फ्रॉम अदर्स, द अदर्स वुड नॉट एबल टू सी हिम। तो ऐसे ही हुआ क्योंकि उसने बैंडेजेस निकाल दिए, स्पेक्टेकल्स निकल दिए, नोज निकल दिए, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी हेड उसका नहीं दिख रहा था किसी को, सब लोग डर गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया। फिर सडनली मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। फिर जो कांस्टेबल था उसका नाम था मिस्टर जेफर्स, वो वहां पे आता है। ही वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी दैट ऑफ द हेडलेस मैन। वो बहुत सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या है, हेडलेस मैन जिसको हेड नहीं है और मुझे ऐसे इंसान को पकड़ना है, वो सरप्राइज हो गया। फिर क्या हुआ देखो, इफ बट जेफर वॉज नो इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम हिज डूइंग हिज ड्यूटी, बट उसको उसकी ड्यूटी करनी थी इंस्पेक्टर को। सो इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट
then that person had to be arrested with or without his head. According to law, you know student what is law? In front of law all are equal, you know that. तो यहाँ पे मिस्टर जेफर्स ने सोचा कि मुझे वारंट मिला है मैजिस्ट्रेट से, इसको पकड़ना है, फिर वो हेड वाला हो या विदाउट हेड वाला हो वो मुझे नहीं देखना है. माई वर्क इज दैट ओनली टू कॉट दिस मैन, कि मुझे इसको पकड़ना है, बस यही मेरा काम है. फिर देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पोलिसमैन tried to go hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. धीरे धीरे जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ लिया, जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ा वो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था. ओके, पहले उसकी गर्दन डिसअपियर हुई, फिर उसने धीरे धीरे सारे क्लोथ्स निकालना शुरू कर दिया, उसके शर्ट हवा में उड़ने लगा, यानी धीरे धीरे वो गायब होने लगा. अभी कांस्टेबल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था बट अभी वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था. ओके, सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, काफी लोगों ने इंस्पेक्टर की हेल्प करने की कोशिश की बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. बट उनको कोई मार रहा था जोर जोर से, जो कहीं से भी दिख नहीं रहा था कि उनको कौन मार रहा है. तो भी उन लोगों ने कोशिश की कि इंस्पेक्टर की हेल्प करें. इन द एंड Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. उसने इंस्पेक्टर ने पूरी तरह से कोशिश की. At the end of his last breath, as he was become unconscious also, वो थोड़ा बेहोश जैसा भी हो गया because someone is making means hitting the blows towards him. उनको कोई मार रहा था. ओके, तो जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया. उसने अपना पूरा लास्ट अटेम्प्ट तक कोशिश की कि वो जो है वो साइंटिस्ट को पकड़े, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया ये कोई नहीं साइंटिस्ट ही है, क्योंकि मिसेस हॉल जो है वो उससे सब बातें ही कर रहे थे. अचानक से वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वाज इजियर सेड देन डन. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. फिर क्या हुआ देखो, सब लोग चिल्लाने लगे जोर जोर से, पकड़ो उसको, होल्ड हिम. बट किसको पकड़ेंगे, कहना इजी था. ओके, मीन्स सेइंग इज इजियर देन डन. बोलना इजी था पर करना मुश्किल था ना, इसीलिए उन लोगों ने उसको कहाँ से पकड़ते, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए, इनविजिबल हो गए, इसलिए ग्रिफिन जो है वो वहां से निकल गए. नाउ ही बिकम फ्री, वो भी बहुत फ्री हो गए. फिर किसी को भी पता नहीं कि वो कहाँ गया, किसको पकड़े. यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर का एंड है. H.G. वेल्स ने लिखा है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है. यानी स्टूडेंट देखो इसका मोरल क्या हुआ, तुमको पता है सप्लीमेंट्री चैप्टर्स आर ओनली फॉर गिविंग द मोरल्स टू यू. मोरल्स ऐसा है कि गॉड हैज गिफ्टेड अस अ टैलेंट, स्किल इन ईच एंड एवरी पर्सन. देन व्हाट वी हैव टू डू, आवर ड्यूटी इज दैट वी हैव टू यूज दिस स्किल, वी हैव टू यूज दिस टैलेंट फॉर गुड डीड्स, for the welfare of the society, for the welfare of the nation. Okay, not for cheating others, not for cheating the nation. Got it? हिंदी में बोलती हूँ, हम लोग गॉड गिफ्टेड टैलेंट हमको होता है हमारे अंदर काफ़ी बार. ये टैलेंट का हमको देश की प्रोग्रेस के लिए, लोगों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए. जैसे ग्रिफिन था, ही वॉज अ वेरी क्लेवर साइंटिस्ट वी कैन से, because it is not easy to make that medicine that we can be transparent or invisible. ये मेडिसिन बनाना कोई सिंपल बात नहीं थी. उसने ये मेडिसिन बनाया भी बट क्या काम का, बिकॉज ही वॉज मिसयूजिंग इट, क्योंकि वो उसका मिसयूज कर रहा था. और तुमको पता है कि हम लोग कुछ भी खराब काम, कुछ भी बैड काम या कुछ भी करते हैं, ऐसा जो भी काम होता है उसका हमें वी हैव टू पे फॉर इट, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है. ये नेचर का रूल है. मे बी उसका चैप्टर आगे भी होगा, यहाँ पे तो एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. इस तरह से ग्रिफिन हर एक गांव में जाता होगा, वहां से रॉबरी करके वहां से भाग जाता होगा, यानी भले उसने चोरी करके पैसा कमाया भी, इज इट मीनिंगफुल? नो, इट इज मीनिंगलेस. कमा के भी क्या करेगा, भागना ही है उसको लाइफ में. उसको कभी लाइफ में पीस नहीं मिलेगा, हार्मनी नहीं मिलेगी, कंफर्ट नहीं मिलेगा. यानी यही हमें सीखना है कि हमें हमेशा एक अच्छा ऑनेस्ट पर्सन बन के रहना चाहिए. ओके, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तुम लोगों को, यहाँ पे तो 2 ही दिए हैं शायद, बट नीचे 3 है. टोटल 5 क्वेश्चन आंसर्स है जो तुम लोगों को अच्छी तरह से लिखने हैं. मुझे ऐसे पता चला है काफ़ी बच्चे नहीं लिख रहे. हम लोग चेक करेंगे, ये मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है तुम लोगों को, सो बी केयरफुल. ओके गाइज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.